عمران خان کی بہن علیمہ خان نے عمران خان کا ایک اور پیغام عوام تک پہنچا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو توڑا جا سکے، لیکن بانی پی ٹی آئی آج بھی پوری طاقت اور قوت سے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور اگر انہیں جیل میں کچھ ہو جاتا ہے، ان کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی چلی جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں واجد باوا، اپنے ڈیجیٹل چینل واجد باوا آفیشیل کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو آن کر دیں اور گاہے بگاہے کمنٹس جو ہے نا ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہم آپ کے کمنٹ سے موٹیویشن لیتے رہیں۔ ناظرین، آج کے ویلوگ میں آپ کو جن خبروں سے آگاہ کروں گا، جن چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، سب سے پہلے بات کروں گا پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو ایک بار پھر جارحانہ انداز اپنا رہی ہے، جس کی وجہ وہ سارا سیاسی ماحول ہے جہاں بانی تحریک انصاف عمران خان کی صحت، سلامتی اور بنیادی انسانی حقوق پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے عمران خان کا ایک اور پیغام عوام تک پہنچایا، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان کسی بھی ذاتی مفاد یا ڈیل کے لیے نہیں بلکہ قوم کے مفاد کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہے۔ ان کے مطابق عمران خان نے پارٹی کو سخت پیغام بھیجا ہے کہ اب ذاتی لڑائیاں ختم کی جائیں۔ جو معاملات ابھی آپ کے سامنے ناظرین پچھلے 2-3 روز میں آئے، جب علی امین گنڈا پور لاہور میں آئے اور عالیہ حمزہ کا ٹویٹ اس کے بعد جو آیا، اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو باتیں کی، جو اگریشن شو کیا، اس کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آئیں کہ ان ساری چیزوں کو گو کہ یہ حسن پیدا کرتی ہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی آپس میں ڈیفرنس پیدا ہو جائے، یہ آپ کو تقویت طاقت دیتی ہیں الٹیمیٹلی، لیکن ان کو اگر طول دے دیا جائے تو یہ تار تار بھی کر کے رکھتے ہیں۔ تو عمران خان کی مشکل ترین حالت کے باوجود ان کی استقامت اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کا پیغام نہ صرف کارکنان کے لیے حوصلہ افزا ہے بلکہ ان تمام الزامات کا بھی جواب ہے جو انہیں جھکانے یا توڑنے کی کوششوں کے تحت سامنے آ رہے ہیں۔ علیمہ خان نے اس موقع پر ایک اور نہایت سنجیدہ بات کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ سب ایک منظم منصوبے کا حصہ ہے تاکہ عمران خان کو توڑا جا سکے، جو کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے، کیونکہ 5 اگست 2025 کو پورے 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کو بیہائنڈ دی بار ہوئے، تو کوشش تو بھرپور کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو توڑ پھوڑ کا شکار بنایا جا سکے، لیکن بانی پی ٹی آئی آج بھی پوری طاقت اور قوت سے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اب وقت ہے کہ قوم اور پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور اگر انہیں جیل میں کچھ ہو جاتا ہے، ان کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی چلی جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے۔ انہوں نے جیل سپرنٹنڈنٹ پر بھی شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ وہ ایک جھوٹا، بے حس اور غیر انسانی شخص ہے۔ یہاں پہ خان صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ایسی ہیں، لیکن اس وقت اگر جیل سپرنٹنڈنٹ کی بات کی جائے تو ناظرین اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تمام مہرے جو ہیں وہ صرف شطرنج کی چال کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ باقی مزید اس پہ جو بات کریں گے ناظرین، اس وقت کے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ماں پر عمران خان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جہاں انہیں کوئی بھی سہولت نہیں دی گئی، نہ ہی انہیں اخبارات تک، ٹی وی تک کسی طرح کی کوئی رسائی نہیں دی جا رہی، نہ انہیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی دی جا رہی ہے۔ صرف اور صرف اگر انہوں نے کوئی ٹویٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو کہتے ہیں اور وہ ٹویٹ ان کے کہنے پہ جیسا ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ سے کر دیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ جب جیل سپرنٹنڈنٹ کی بات آئی ہے تو میں یہاں پہ یہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کل ایک عدالت میں ایک لیٹر
जेल हुकाम की तरफ से अपने साइनों से जो अदालत में पेश किया है, उसके मुताबिक वहाँ पे कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने 413 ट्विटर पर ट्वीट करवाए हैं। ये यहाँ तक उन्हें रसाई दी जा रही है कि वो इस यहाँ पे ट्विटर पे आके अपने कारकुनान से और अपनी जमात के जो इस वक्त बाहर लीड कर रहे हैं इनकी जमात को, उनको मैसेज एक फराम कर दें। लेकिन अलीमा खान साहिबा इसके बरक्स मुसलसल बात करें कि इमरान खान साहब को सिर्फ एक सेल में रखा गया जेल के अंदर, और वो 8x6 का एक छोटा सा सेल है जहां पे लाइट भी कई दफा कई घंटे तक बंद कर दी जाती है और वो देख भी नहीं सकते और अंधेरा उनका साथी होता है। और उसके अलावा इर्द गिर्द उनके जो 3 सेल्स हैं वो भी खाली हैं, बट दिस इज ऑल फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। और जेल हुकाम ये भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान को बैनुल अक़वामी मीडिया तक रसाई दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये बातें सुनने को मिल रही हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि अगर इंटरनेशनल मीडिया को रसाई दी जा रही है तो जो नेशनल मीडिया है, जो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमें इसकी रसाई क्यों नहीं दी जा रही, इसकी इजाजत क्यों नहीं मिल रही कि हम भी जान सकें कि अंदर चल क्या रहा है, इमरान खान क्या चाहते हैं, ताकि आवाम को भी पता चल सके। क्या ये मुमकिन नहीं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? क्योंकि एक तरफा बयानात और इंतजामी वजाहतें कौम के उन शकूक व शुबहात को ख़त्म नहीं कर सकती जो आए रोज़ मीडिया, सोशल मीडिया और अवामी हलकों में गर्दिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इन शकूक व शुबहात को ख़त्म करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो नेशनल मीडिया है, जो सहाफ़ी हैं फ्रंट लाइन के, उनमें से एक जो जिस तरह स्टेट चाहे, लेकिन एटलीस्ट 5 से 7 सहाफ़ियों को इस चीज़ की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि वो नाज़रीन को हक़ाइक़ बता सकें। एक और वाज़ेह शफ़ाफ़ पॉलिसी अपनाए, सियासी रहनुमाओं की बुनियादी इंसानी हुकूक़ का एहतराम किया जाए और अगर कोई जुर्म है तो शफ़ाफ़ तरीके से साबित किया जाए। इमरान खान जैसे रहनुमा को जेल में रखकर उनकी आवाज़ बंद करके या उनकी शख्सियत को दबाने की कोशिशें ना तो जमहूरियत के हक़ में बेहतर हैं और ना ही रियासती इदारों के वक़ार के लिए सूदमंद है। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त अगर आप देखें, इस वक्त आज ही मैं सिर्फ इसकी एक हाईलाइट दूंगा कि 11 रुपये पेट्रोल फिर महंगा हो गया। चीनी की बात की जाए तो बुनियादी ज़रूरत है, कभी एक्सपोर्ट कर दी जाती है और फिर वही चीनी इंपोर्ट करने की समरी मंजूर की जाती है। ये क्या है नाज़रीन? ये एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुंचाना है ताकि वो तबका हुकूमत और स्टेट के साथ जुड़ा रहे और कहीं भी किसी वक्त भी ऐसी कोई बात ना करे कि जिससे ऐसा महसूस हो कि इमरान खान को बैक किया जा रहा है। उनकी जो इस वक्त जिस कैद में वो मुब्तला हैं, उनको जो सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार किया जा रहा है, तो इस पे कोई ऐसा सवाल ना उठे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि रियासती अदारों के वक़ार को देखते हुए इस मामले को मिल बैठ के हल करना चाहिए। दोनों साइड से लचक दिखानी चाहिए ताकि इस्तेहकाम पाकिस्तान कायम रह सके, पाकिस्तान पे कोई सवाल ना उठा सके। और नाज़रीन, इसी से जुड़ा एक और अहम इशू कि जहां पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, तो नाज़रीन एक इंतहाई अहम इशू की तरफ मैं जाना चाहूँगा। क्योंकि स्टेट जहां पे क्वेश्चन मार्क बनती है, लेकिन वहाँ पे स्टेट इंतहाई कुछ अच्छे काम भी करती है। पिछले चंद एक माह से हमने सुना, नाज़रीन आपने सुना कि अक्सर औकात कश्ती डूबने के वाक़यात आपको मिले कि कुछ लोग डंकी मार के जब मुल्क से बाहर जाते हैं, रोज़गार तलाश करने के लिए जाते हैं, जब वो इलीगल वेज इस्तेमाल करते हैं, वो लीगल वेज से नहीं जाते, तो वो जिस कश्ती के ज़रिए जा रहे थे वो डूब गई और उस कश्ती के डूबने के वाक़े ने पाकिस्तान की जग हसाई की पूरी दुनिया में, जिस पे हुकूमती सतह पे भी एक भूचाल आया, FIA के अंदर भी जोड़ तोड़ इंतहाई हाई लेवल का हुआ और आपने देखा। तो यहाँ पे मैं इसी तरह का एक इंतहाई अहम इशू की बात करूँगा कि हाल ही में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि 40,000 पाकिस्तानी
ईरान, इराक और शाम जाकर या तो लापता हो चुके या वहीं गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं या वहां से कहीं आगे जा चुके हैं। इन अफराद का पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के पास ना ही तो कोई सरकारी रिकॉर्ड है और ना ही वाज़ेह है कि वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस जगह पे हैं इस वक्त, जियोग्राफिकली उनकी क्या लोकेशन है। इनमें अक्सरियत उन नौजवानों की है जो ज़ायरीन के वीज़े पर इराक जाते हैं लेकिन वापसी की राह नहीं लेते। वो या तो इराक के मुख्तलिफ शहरों में छुप जाते हैं या वहाँ मजदूरी के मौके हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको इंतहाई अहम जो ना एक बात बताने जा रहा हूँ कि मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त, एक करीबी साथी जो हैं वो भी सफ़र कर रहे थे, ईरान बॉर्डर से गुजर रहे थे। तो वहाँ पे जो गाड़ी में जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे थे, पैसेंजर बस थी, तो उसमें 2 पाकिस्तानी नौजवान भी मौजूद थे जो बगैर वीज़े के इराक जा रहे थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप इराक किस मकसद के लिए जा रहे, क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ पे काम की तलाश के लिए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि वहाँ तो इंतहाई गुर्बत है, हमारे तक तो यही खबरें हैं कि वहाँ पे गुर्बत जो है बहुत ज़्यादा है और इराकी जो हैं वहाँ पे उनके पास भी काम की सहूलियात मौजूद नहीं। लेकिन जो उन्होंने आगे से उन लड़कों ने बात बताई तो बड़ी ही हैरानकुन थी कि वहाँ पे काम करने के इंतहाई मौके जो हैं मौजूद हैं, जॉब्स मौजूद हैं और डॉलर्स में जो है वहाँ पे पेमेंट्स की जाती हैं। सैलरीज और वेजेस वहाँ पे कन्वर्ट अगर करें पाकिस्तानी रुपीस में तो बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये उनके लिए इंतहाई हैरानकुन बात थी। लेकिन जो बातें उन लड़कों ने बताई हूबहू वैसे ही जब वो एक होटल इराक के होटल में जाके ठहरे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बेशुमार पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पे रह रहे हैं। उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा हम यहाँ काम करने के लिए आए और हमें यहाँ पे पाकिस्तानी अगर बात करें तो महीने के 3 से 4 लाख रुपए, दैट्स मीन के $1000 से लेके एटलीस्ट $1000 से लेके $1500 तक वो वहाँ पे कमा रहे हैं और वो इंतहाई खुश हैं कि उनकी ज़िंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, अपने ख़ानदान को पाकिस्तान में भी पैसे भिजवा रहे हैं। लेकिन अगर मैं वैसे उनसे जब डिस्कशन में, वो दोस्त बता रहे थे कि जब डिस्कशन में बात सामने आई तो ये नौजवान उसी पट्टी से हैं जहाँ से पहले भी लोग कश्ती वाले वाक़े में डूबे, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरांवाला और इसी से मुल्हिका इलाकों से उनका ताल्लुक़ है। ये तो नाज़रीन मेरे दोस्त ने जो बात बताई इराक तक, लेकिन इससे आगे भी जब उन्होंने कुछ बातें बताई तो ये तो पूरे उस स्कैम की एक गिरा खोल दी उन्होंने कि यहाँ से जो पाकिस्तानी नौजवान है वो आगे फर्दर मूव करते हैं, चंद एक शाम जाते हैं, शाम से देन दे मूव टू द टर्की और टर्की से फिर वहाँ से ये कश्ती के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस किया जाता है और इन्हें यूरोप भेजा जाता है। और जो कश्ती डूबने के वाक़े हैं सारे वो भी इसी की एक कड़ी है। और बाद में जो चीज़ें सामने, क्योंकि इस चीज़ को, इस सारी मामले को जो है ना वो ट्रैक कर लिया FIA ने, स्टेट ने, लेकिन यहाँ से बात यहाँ तक रुकती नहीं है। जो चंद एक नौजवान वहाँ पहुँच जाते हैं वो वहाँ पे फिर काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक टिकटॉक पे एक शादू वेले के नाम से जो है ना वो खुद कहता है वो इटली चला गया और फिर वहाँ से यूरो कमा कमा के यहाँ पे अपनी फैमिली को भेजता रहा। उसका हुलिया ही बदल गया, उसका गेटअप भी बदल गया। मैं उस पर तो बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे ही बाकी नौजवान भी पैसे कमा कमा के यहाँ पे भेजते हैं। यहाँ पे उनके ख़ानदान का, उनकी फैमिली का लाइफस्टाइल बदल जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक से दूसरा बंदा उसी रास्ते के ज़रिए बाहर जाता है। तो नाज़रीन, ये जो अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ को ट्रैक किया है, डॉक्यूमेंटेड करना शुरू कर दिया है, इट इज़ अ रियली गुड जेस्चर के अब कोई भी बंदा जाएगा उससे बाकायदा रोक टोक होगी और पूछा जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने पुराने सालार सिस्टम को ख़त्म करके एक नया कंप्यूटराइज और रजिस्टर्ड निज़ाम मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है ताकि असल ज़ायरीन महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से ज़ियारत कर सकें। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक नौजवान अपनी जान खतरे में डालकर गैर कानूनी रास्तों से दूसरे मुल्क जाना चाहता है? उसका जवाब बहुत कड़वा और तल्ख है। पाकिस्तान में महंगाई
दिन ब दिन बढ़ रही है। बेरोजगारी अगर आप कहें तो जो लोग, मैं बल्कि यहाँ ये बताना चाहूँगा नाज़रीन को, जो हमारे सहाफ़ती हलके हैं, अभी रोज़नामा जंग से बेशुमार लोगों को निकाला गया। इसी तरह और अदारों से भी जब किसी का दिल चाहता है, जैसे जी चाहता है, निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ बेशुमार हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपनी तालीम लेके रोज़गार के मैदान में आती है, लेकिन बेरोज़गारी भी आसमान को छू रही है। उसके अलावा मज़ीद सब जानते हैं करप्शन, और यहाँ पे अगर इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा तो ये मज़ीद पाकिस्तान खोखला हो जाएगा। तो नाज़रीन, जाते जाते मैं ये आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ हिजरत नहीं, ये यहाँ से इल्लीगली वहाँ मूव होना नहीं है, ये एक चीख है, एक एहतजाज है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिसने हर पाकिस्तानी नौजवान से उम्मीद ही छीन ली है। जब तक हम अपने मुआशी, समाजी और हुकूमती ढांचे को दुरुस्त नहीं करते, और अगर हम यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कोई ऐसा निज़ाम नहीं लेकर आते, या कोई वेलफेयर स्टेट की तरफ हम सोचना शुरू नहीं करते, तो नौजवान ऐसे ही अपनी जान की बाजी लगाते रहेंगे और हम सिर्फ खबर पढ़कर अफसोस करते रहेंगे, और हुकूमत उस पे कुछ अफसरान को, कुछ लोगों को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी। देयर इज़ नथिंग एल्स। नाज़रीन, जाते जाते फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को ऑन कर दें, और अपने कमेंट्स लाजमी भेजें। अल्लाह ने के बाद।